Today we will understand what is the missing line and missing views. So very quickly we are start. So missing line and missing view. What is the missing line and missing view? Mm, The student want to the know what is the orthographic view and it is perfect in the orthographic view. We know the student, we know the teacher, so that's why we use the missing line and missing views. Orthographic projection are basic of a engineering drawing. If you want to understand what is the orthographic projection, so there is a perfection or not. So we are using the missing lines and missing view. We knowingly some lines are missing and give the problem of the student find out where the missing lines and fill it. That's why the orthographic view is completed. The knowing of the orthographic projection can be tested by the missing line and missing views of orthographic projections. It will इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझना है और हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझ चुके हैं तो उसकी जांच के लिए टीचर क्या करेगा, एक ड्राइंग देगा और उसमें कुछ आपको लाइंस मिस करके देगा और आपको प्रॉब्लम देगा कि इन मिसिंग लाइनों को आपको ज्वाइन करना है जिससे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाए। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आप समझना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। इससे टीचर को ये पता चल जाएगा कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की पूर्ण रूप से जानकारी है। Can be tested by the missing line and views. If the missing line or views is well located by the student, that mean attend a good knowledge. It means अगर ये student इन सारी missing lines और views को fulfill कर देता है, ठीक तरीके से locate कर देता है, तो ये टीचर बेटर तरीके से समझ सकता है कि स्टूडेंट को ऑर्थोग्राफिक व्यू की नॉलेज है। Next, missing lines. So missing line are knowingly ignored to the orthographic projections are called missing line. It means वो जानबूझकर टीचर जानबूझकर कुछ लाइंस मिसिंग कर देता है और स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम देता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट इट्स अ फ्रंट व्यू एंड here for example we taken in this side, so it's a quite easy for understanding. It's a front view and here the student draw the side view and here the top view, right? So few lines are missing. For example like that it's a side view. So in the side view and top view few lines are missing, so student just read out of these views and find where the missing lines. For example, if the observer here and seen that front view, so here one edge located here in this side, in this point. So simply we are located or projection line taken and one line is missing here in the side view. So student just seen and fulfill that line, draw that line. Now this side view is completed. Then again, if he is draw the top view, so again the student or observer here and seen that object, so that point, that edge again see.
which means here one line. So now that both views are completed, which causes the teacher confirm the student have a good knowledge of orthographic views. Next is the missing views. Now we understanding what is the missing views. Now the teacher are knowingly ignore or whole view. For example, whole view. For example, like that, it's a view, it's a view, and here the top view, here the top view. Now the teacher asking draw the side view. It means the whole view are disappear. In this problem, you draw the whole view, not only the missing lines. So the observer here just seen this age projected simply like that. Now again this age seen by the observer, so its point located here and draw the line. Again if the observer here, so this point are not seen by this observer, so again we are projected here and draw the line. Now its side view is completed. So that the way also sometime in a missing view whole view are missed and ask to draw the whole view. The next slide, method of locating the missing view. We understanding in the previous slide we taken a one object, one drawing, and the sometime the line is missing and sometime the whole view is missing. Sometime is the missing line and sometime is missing view. So it is give the two views is like a front view and top view and asking the side view, and sometimes it's a side view and top view and asking the front view and all. So there are a different method. It is a more enough if you have a two views is like a front view and top view, so it's a more enough you draw the third view, which result in the student understand the orthographic uses. Now there is a one problem. We taken a one problem here for a missing lines. For missing line, it's a three view. There are a three view and there is something line missing. कुछ लाइनें इसमें मिसिंग हैं जिन्हें हमें ड्रॉ करना है। ये तीनों व्यू उसने दे रखे हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली मिसिंग लाइन की है। सो नाउ if the observer here take in the pen, if the observer here and just look that view, so here one point and that point are projected here like that. Okay, so that line are missing in the problem. In a previous slide there is no line. So if the observer here that age is shown, so projected here and make the line. अगर ऑब्जर्वर इस साइड होगा तो उसको ये एज दिखाई देगा और यहाँ पे एक लाइन आएगी। अगर ऑब्जर्वर टॉप व्यू हमें बनाना है और ऑब्जर्वर यहाँ है, इफ द ऑब्जर्वर हेयर, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें ये पॉइंट दिखाई देगा। तो हमें इसे
प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ ड्रॉ करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट व्यू को कैसे बना सकते हैं हम। यहाँ हमें 45 डिग्री एंगल लेना होगा और यहाँ से इस आउटर एज को प्रोजेक्ट करना होगा। जो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी। ये प्रोजेक्शन ऊपर से हमें फ्रंट व्यू में यहाँ मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमें इस व्यू से मिल जाएगा और इसकी लेंथ हमें फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। तो हमारे पास सेम आउटर से अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा और ये लेंथ मुझे फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। यानी कि ये हाइट मुझे साइड व्यू से मिल गई, दोनों हाइट, और ये लेंथ मुझे फ्रंट व्यू से मिल गई। अब अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे यहाँ ये लाइन प्रोजेक्ट करनी होगी, यानी कि ये लाइन प्रॉब्लम में मिसिंग थी, जैसा कि हमने प्रॉब्लम में देखा था। देयर इज लाइन इज मिसिंग। तो नेक्स्ट वी हैव टेकन द अनदर प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, इसमें 3 व्यू दे रखे हैं और हमसे मिसिंग लाइन पूछ रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको क्या क्या दिखाई देगा, राइट? उसको कौन कौन सी मिसिंग लाइन फुलफिल करनी है। उसने ये 3 व्यू दे रखे हैं प्रॉब्लम में, तो वो पूछना चाह रहा है इसमें कौन कौन सी लाइन मिसिंग है। तो हमें साइड व्यू से देखना होगा क्योंकि इसमें कौन कौन सी लाइन मिस है। चलिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये एज दिखाई देगा जो कि ये ड्रॉ है, मिस नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये एक पॉइंट दिखाई देगा जो कि ड्राइंग में मिस है, जो कि प्रॉब्लम में मिस है। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। अगेन मैं देखूंगा, अगेन मैं प्रॉब्लम में देख सकता हूँ यहाँ पे मिसिंग लाइन थी तो वो हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पे भी लाइंस मिसिंग है, तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे साइड व्यू और टॉप व्यू की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे ये एज दिखाई देगा, तो मैंने ये एक यहाँ कहीं पॉइंट कर लिया। एक ये एज दिखाई देगा, यहाँ से प्रोजेक्शन करा तो ये पॉइंट मिल गया, यानी कि मुझे ये लेंथ फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। अब मैं दोबारा यहाँ पर 45 डिग्री एंगल लूंगा। उसके बाद ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसे कौन कौन से एज दिखाई देंगे और हम इस फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हम आउटर एज देखते हैं, ये एज दिखाई देगा। यहाँ से सिंपली मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा एक, और ये वाली लेंथ मुझे फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। ये कहाँ तक जाएगा ये पॉइंट, यहाँ तक, जो कि मैंने ऊपर से प्रोजेक्ट किया है। अब मैं इसके आउटर एज इसको देखता हूँ जिससे मुझे ड्राइंग बनाने में इजी रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम फ्रंट व्यू से आसानी से निकाल सकते हैं। ये बन गया। तो मेरे पास ये एक बॉक्स मुझे मिल जाएगा जो कि प्रॉब्लम में दे रखा है। अब हमें यहाँ से अगर ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये एक पॉइंट दिखाई देगा जिसे मैं सिंपली जिसे मैं सिंपली प्रोजेक्ट कर लूंगा, जिसे मैं सिंपली यहाँ से इस व्यू के अंदर प्रोजेक्ट कर लूंगा। यहाँ से आए और यहाँ पर ये मैंने एक लाइन प्रोजेक्ट कर दी जो कि प्रॉब्लम में मिस थी। जैसा कि हमने प्रॉब्लम में देखा, देयर इज नो एनी लाइन, विच वन इज मिसिंग, so we are draw here. Next point, this again we are draw here, this line also missing in the problem। ये लाइन भी प्रॉब्लम में मिसिंग है, इसलिए हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया। नाउ द प्रॉब्लम इज completed, all the missing line are complete। If you have a good knowledge of a orthographic view,
So you can easily draw the missing lines. Now the problem of view. There are two view, front view and top view. And he is asking to side view. How to draw the side view? Now we take in the pictorial view for that problem. For example, this is a pictorial view. This is a pictorial view. Now we draw the side view, this view in the problem. We take the all view. First of all, we draw the front view, then top view, then we draw the side view. It means we are understand the all views, then we will draw easily side view. So first we draw the front view. If the observer here, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ से देखता है तो उसको ये स्क्वायर दिखाई देगा, ये स्क्वायर जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये आउटर स्क्वायर दिखाई देगा पूरा। और फ्रंट व्यू में अगर वो यहां से देखता है तो ये एक स्क्वायर उसे दिखाई देगा, ये दो स्क्वायर उसे दिखाई देंगे जो कुछ भी इनकी डायमेंशंस है। इस केस में ये 60 बाई 60 का स्क्वायर है। तो हमें फ्रंट व्यू में ये आउटर स्क्वायर ड्रॉ करना है, जो कि मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ये आउटर स्क्वायर हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेंटर में मुझे ये 20 बाई 20 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी डायमेंशन इसकी है हम वो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, वो प्रॉब्लम में डायमेंशंस देगा। So there are a 20 by 20. So we take in a 20 by 20 square in the center. Maybe it is dislocate to the center in a upper portion, in the lower portion, in left to right. कहीं भी ये हो सकता है, जहाँ कहीं भी होगा, जो कोई भी डायमेंशंस होंगी इसकी हम उसे यहाँ इजीली ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है। अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि क्या दिखाई देता है, ऊपर से ड्रॉ करने पर क्या दिखाई देगा। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा। नंबर वन, उसे ये स्क्वायर दिखाई देगा बाहर वाला, ये बाहर वाला स्क्वायर दिखाई देगा जो कि 60 बाई 60 का है, ये बाहर वाला। अगर वो ऊपर से देखेगा तो उसे ये पोर्शन और दिखाई देगा, ये स्क्वायर और दिखाई देगा। अगर यहाँ सर्किल होता तो वो सर्किल देख के यहाँ सेंटर में सर्किल ड्रॉ करता, मगर यहाँ स्क्वायर है तो वो सेंटर में स्क्वायर ड्रॉ करेगा। सो इन दिस component, in this object, the both front view and top view by default it's same, otherwise there is a some difference. If the difference in the component, इसमें दोनों व्यू सेम बन रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है। आउटर स्क्वायर हम ये बना लेंगे और फिर सेंटर में ये 20 बाई 20 का एक स्क्वायर बनाएंगे और टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हर कंपोनेंट में सेम बने। अब हम, जैसा कि प्रॉब्लम में पूछा गया है कि थर्ड व्यू यानी कि साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है, अब हम इन दोनों व्यूज की हेल्प से साइड व्यू को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से देखूंगा यानी कि साइड से देखूंगा, अगर मैं इसे यहाँ से साइड से देखता हूँ, ऑब्जर्वर इस साइड से देखता है तो उसको ये एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ये ट्रायंगल दिखाई देगा जो भी इसकी डायमेंशन हो, और एक ये ट्रायंगल दिखाई देगा, ये छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखाई देगा इसको। यानी कि ये दो ट्रायंगल साइड से उसे दिखाई देंगे। इफ वी विल ड्रॉ द साइड व्यू, सो हाउ इट इज ड्रॉ,
फर्स्ट वी टेक दिस डायमेंशन, जो भी हो ये डायमेंशन, ये हाइट, ये सब प्रॉब्लम में दे रखी होगी डायमेंशन हाइट्स। तो हमने यहाँ से यहाँ तक 60 ड्रॉ करा, जो कि इस प्रॉब्लम में था, है। और ये हाइट हमने ड्रॉ करी, जो कि इस प्रॉब्लम में 60 है। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये ट्राइंगल हमारा नंबर 1 ट्राइंगल ये कंप्लीट हो गया। अब हम जब यहाँ से देखते हैं तो सेंटर में हमें ये 20 हाइट का एक लाइन मिलेगी और एक ये 20 की मिलेगी। तो हम इसे इजीली यहाँ सेंटर में 20 बाई 20 ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम में साइड व्यू पूछा गया था, साइड व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब now there are some different situation, we change the object, there is a quite changes if that portion is not outside, my mean is that अगर ये पोर्शन बाहर की साइड नहीं है, अंदर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, अगर ये अंदर की तरफ धसा हुआ है तो इसके व्यू कैसे बनेंगे? अगर हम यहाँ फ्रंट से देखेंगे तो सेम आउटर में ये स्क्वायर आएगा, जो कि हम यहाँ बना चुके हैं फ्रंट व्यू में, ये ऐसे बन जाएगा। और सेंटर में देखेंगे तो हमें ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हमें दिखाई देगा, ये स्क्वायर हमें दिखाई देगा फ्रंट से देखने पर। तो सेंटर में ये 20 बाई 20 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि फ्रंट व्यू कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। अगर हम इसे टॉप से देखते हैं, यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, तो उसे क्या दिखाई देगा? अगेन ये एक स्क्वायर दिखाई देगा। और ऊपर से अगर वो देखेगा तो उसे ये वाला स्क्वायर दिखाई देगा, यानी कि नीचे वाला स्क्वायर दिखाई देगा। मैं इसे रब करके दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से देखेगा ऑब्जर्वर तो उसको अब ये नीचे वाला स्क्वायर दिखाई देगा, ये स्क्वायर दिखाई देगा। तो वो यहाँ 20 बाई 20 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये टॉप व्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइड व्यू में कुछ चेंजेस आएंगे। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है तो सेम उसको ये ट्राइंगल दिखाई देगा, तो हम ये ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पे 60 बाई 60 का, ये हमने बना लिया। अब अगर वो यहाँ से देखेगा तो ये अपर पोर्शन पोर्शन उठा हुआ नहीं है, तो हमें अब ये उठा हुआ ऐसे नहीं बनाना है, यानी कि ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। साइड से देखेगा तो उसे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा उठा हुआ पोर्शन, उसको केवल ये ट्राइंगल दिखाई देगा। और वो यहाँ से देखेगा तो यहाँ उसे कोई भी उठा हुआ पोर्शन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये अंदर की तरफ है। तो जो चीज, जो एज हमें दिखाई नहीं देता और वो है, तो हम उसे डॉटेड ड्रॉ करते हैं लाइक दैट। तो हमारे फ्रंट व्यू में, सॉरी हमारे साइड व्यू में ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं डिजिटली ये डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मगर आपको कुछ ऐसे ही ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और लेकर देखते हैं, दोबारा समझते हैं। इसमें इसने साइड व्यू, इसमें इसने साइड व्यू और फ्रंट व्यू दे रखा है और टॉप व्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सो इट्स अ पिक्टोरियल व्यू, इट्स अ आइसोमेट्रिक व्यू हियर, इट्स अ आइसोमेट्रिक व्यू। सो we are draw the top view here, right? So how we are draw the top view? So first we are draw the front view which is given by the problem, मगर फिर भी हम एक बार चेक करते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या ड्रॉ होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम में कोई भी व्यू पूछ सकता है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हमें एल शेप दिखाई देगी, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, ये हमने ड्रॉ कर ली, जो भी इसकी डायमेंशन है। अब अगर हम इधर ही से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो हमें ये एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ये ट्राइंगल दिखाई देगा।
तो हमने सिंपली ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इससे हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम साइड से अगर देखेंगे इसे, इस साइड से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो क्या दिखाई देगा? इस साइड से अगर ऑब्जर्वर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है वो देखते हैं। एक तो ये शेप दिखाई देगी, और उसको ये एक शेप दिखाई देगी जो कि हमने यहाँ ये ड्रॉ कर ली, जो भी इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन प्रॉब्लम में दे रखी होगी। और एक ये एज दिखाई देगा, एक ये एज दिखाई देगा, अंदर साइड वाले ये। तो हमने ये एक एज ड्रॉ कर लिए, ये ड्रॉ कर लिए, यानी कि साइड व्यू कुछ ऐसे बनेगा जो कि प्रॉब्लम में दे रखा है। उसने हमसे टॉप व्यू पूछा है। अब हम इन दोनों की सहायता से टॉप व्यू को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम ये आउटर एज प्रोजेक्ट करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं आउटर एज प्रोजेक्ट करूंगा तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे इसकी ये हाइट कंफर्म करनी है, ये हाइट मुझे नहीं पता, तो मैं अगेन वैसे ही यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री का एक एंगल लूंगा, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूंगा और यहाँ लाके प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ से आऊंगा, ये प्रोजेक्शन इस 45 डिग्री पर कहीं लाई करेगी ये लाइन, और इसको मैं यहाँ लाके प्रोजेक्ट कर दूंगा। आप ड्राफ्टर स्केल से बनाएंगे ये एक्यूरेट आएगा, मैं डिजिटली इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगेन मैं अगर इसे ऊपर से देखूंगा तो यहाँ पर ये एक पॉइंट प्रोजेक्शन का यहाँ कहीं लोकेट हो जाएगा, और अगेन यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगा तो यहाँ कहीं लोकेट हो जाएगा। क्योंकि हम फ्रंट से देखेंगे तो ये स्ट्रिप पूरी है, ये वाली स्ट्रिप, तो मैं यहाँ से इसको ये ड्रॉ कर दूंगा, राइट, ये स्ट्रिप आ जाएगी इसमें। उसके बाद हमारे पास ऊपर से अगर देखेंगे तो ये 1 2 3, ये 3 स्ट्रिप दिखाई देंगी जो कि हमने यहाँ लोकेट कर रखी है। ये पॉइंट पर कहीं आएगी, यहाँ इस पॉइंट पर कहीं आएगी। ये लाइन मैंने फ्रंट व्यू से ड्रॉ कर ली, और इस पॉइंट को यहाँ से लेके मैं इजिली ड्रॉ कर दूँ। नाउ अवर टॉप व्यू इज कंप्लीटेड। तो मिसिंग लाइन और मिसिंग व्यूज में हमें ऐसे मिसिंग लाइंस मिलेंगी और मिसिंग व्यू मिलेंगे जो हमें स्टडी करने हैं। ड्राइंग को पढ़ना है, पिक्टोरियल व्यू को देखना है, डायमेंशंस को देखना है, और उस मिसिंग लाइन को देखकर रेक्टिफाई करना है, इम्प्रूव करना है, फुलफिल करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को हमें बनाना है। अब वन बाय वन आप अपना रोल नंबर सेंड करिए और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्लीज वन बाय वन send your roll number and ask your any query and doubts.